جب تاریخ کی ایک نہایت سرکش قوم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ رات صرف ایک سازش کی رات نہیں تھی بلکہ اللہ کے ایک عظیم معجزے کی رات بن گئی۔ اس ایک واقعے نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایسی الجھن میں ڈال دیا جو قیامت تک ختم نہ ہو سکی۔ وہ کون سا آسمانی فیصلہ تھا جس نے دشمنوں کو بھی یقین اور گمان کے بیچ لا کھڑا کیا؟ کیسے ایک وقتی شبہ وقت کے ساتھ عقیدہ بنا اور پھر وہی عقیدہ کفر میں بدل گیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد تمام اہل کتاب اپنی آنکھوں سے حق اور سچ کو دیکھ لیں گے اور کسی انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی، جسے جاننا ہر صاحب عقل کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہر لمحہ ایک نئی حقیقت سے پردہ اٹھائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اور باخبر کرنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے آخری نبی تھے جنہوں نے تقریباً 30 برس کی عمر میں علانیہ طور پر اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل مبارک سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار واضح معجزات عطا کیے، جن میں سب سے عظیم معجزہ بغیر والد کے آپ کی ولادت تھی، اور پیدائش کے فوراً بعد آپ کا کلام کرنا، جس کے ذریعے آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی اور سچائی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا افراد کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں بینائی نصیب ہو جاتی۔ کوڑ اور برس جیسے مہلک امراض میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی۔ حتیٰ کہ پانی پر چلنے جیسے حیرت انگیز معجزات بھی آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے۔ ان روشن نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، مگر اپنی قوم کے سخت رویوں اور مخالفت کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے مشن پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت اور دیگر برائیوں سے باز رہنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کی، لیکن اکثر یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے۔ البتہ کچھ نیک دل افراد ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے معاون بنے، جنہیں قرآن مجید میں حواری کہا گیا ہے، اور مفسرین کے مطابق ان کی تعداد 12 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ گھر کے مالک تھے اور نہ ہی آپ کی ازدواجی زندگی تھی، بلکہ آپ شہر شہر سفر کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پیروکاروں کی تعداد دیکھی تو انہیں اپنے مذہبی اقتدار کے زوال کا خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ اس دور کے فلسطینی حکمران، جسے روایات میں پلاطس کہا جاتا ہے، اس کے پاس جا کر شکایت کی کہ مسیح ناصری اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، لشکر جمع کر رہا ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو ایک دن حکومت پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا فیصلہ سنا دیا۔ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص ظاہراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا اور بظاہر آپ کی صحبت میں رہا کرتا تھا، مگر حقیقت میں وہ دل کا منافق تھا اور پس پردہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی منافقت سے بخوبی واقف تھے، لیکن رب العالمین کی مشیت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ خاموش رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک شخص مجھے چند سکوں کے بدلے فروخت کر دے گا۔ دوسری جانب بادشاہ نے تیتیانوس سے بھاری درہم دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس شرط پر کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے یا کسی اور کے ذریعے یہ کام انجام دلوائے۔ اسی لالچ میں تیتیانوس نے چند یہودی افراد اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر داخل ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کے ایک چشمے سے غسل فرما کر تشریف لا رہے تھے، جبکہ آپ کے مبارک بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशन दान के जरिए आसमान की तरफ बुलंद कर दिया गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठ रहे थे तो तेतियानूस ये मंजर देखकर शदीद हैरान रह गया। काफी देर वो इस ताज्जुब में खड़ा रहा और उसके साथियों ने समझा कि शायद तेतियानूस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है। तब अल्लाह ताला ने तेतियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। जब वो बाहर निकला तो साथियों ने यही समझा कि यही हज़रत ईसा हैं और फौरन उसे पकड़ लिया। तेतियानूस बार बार चलाता रहा कि मैं तुम्हारा साथी हूं और मैं ईसा को पकड़ने आया था, मगर किसी ने उसकी बात पर तवज्जो न दी। सब बोले, ए ईसा, तुमने हमारे साथी तेतियानूस को कत्ल कर दिया है और अब हमें धोखा देना चाहते हो। सिपाहियों ने तेतियानूस को सख्त रस्सियों में जकड़ लिया और घसीटते हुए ले चले। रास्ते में यहूदी और बादशाह के सिपाही उसे कहते जाते कि तू मुर्दों को जिंदा करता था और बीमारों को शिफा देता था, अब अपने आप को इस रस्सी से आजाद नहीं कर सकता। और वो उस पर थूकते और कांटे फेंकते रहे। आखिरकार वो लोग तेतियानूस को इस सूली के तख्ते के पास ले आए जिस पर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाना चाहते थे। कुछ देर बाद तेतियानूस की लाश इस सलीब पर लटक रही थी। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जब तेतियानूस के साथियों ने उसे गौर से देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था और बाकी सारा बदन तेतियानूस का। यहूदियों ने कहा, अगर ये शख्स वाकई ईसा मसीह हैं तो हमारा आदमी तेतियानूस कहाँ है? और अगर ये तेतियानूस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए? इस तरह यहूदियों के दरमियान शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। पहले गिरोह को याकूबिया कहा जाता है, जिनका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा गिरोह नेस्टोरिया कहलाता है, जिनका कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठाया। तीसरा गिरोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही अकीदा इख्तियार किया और माना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से क़ब्ल दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। नाज़रीन, अब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर बात करेंगे। जैसा कि हर नबी ने अपनी नबूवत को साबित करने के लिए वाज़ेह निशानियां दिखाएं, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारे रब की रोशन अलामात लेकर आया हूं। आपने फरमाया कि मैं मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाऊंगा और उसमें फूंक मारूंगा तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी नाबीना को बीनाई दूंगा। मैं बर्स और कूड़ के मरीजों को शिफा दूंगा। अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करूंगा और मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा रखते हो। ये सब निशानियां तुम्हारे ईमान के लिए हैं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो याद रखो कि अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, इसी की इबादत करो। यही सिरात मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ ने इनकार किया और मोजिज़ात को जादू या सहर करार दिया। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और नसीहत के ज़रिए उन्हें राह हक़ की तरफ हिदायत फरमाते रहे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 ख़ास दोस्तों, जिन्हें हव्वारी कहा जाता था, के साथ सरज़मीन उर्दुन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। रास्ते में जहाँ माँ भी नाबीना या माजूर शख्स मिलता, अल्लाह के इज़्न से उसकी शिफा फरमाते। यूं आप लोगों को अल्लाह की निशानियां दिखाते, बदअकीदगी और शिर्क से रोकने की कोशिश करते और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रहनुमाई फरमाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 मुखलिस अफराद थे, जिनमें पतरस, अंद्रियास, याकूब, योहना, फ्लॉपस, बरतरलोल्मा, तूमा, मत्ती, याकूब बिन हल्फा, शमून, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा इस्खरियाती शामिल थे। ये आखिरी हवारी। यहूदा इस्खरियाती मुनाफिक और खाइन था। उसने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दे दिया, जिसके बाद आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन वो अपने दिलों में यकीन और इत्मीनान चाहते थे। इसलिए एक दिन उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि क्या आपका परवरदिगार हमारे लिए आसमानी दस्तरखान मुहैया कर सकता है? उनके इस मुतालबे में शक व तरद्दुद की झलक थी,
जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़ा परेशान हुए और आपने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया कि अगर तुम लोग ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो। हवारियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस दस्तरखान से खाएं ताकि हमारे दिल यकीन और इत्मीनान से भर जाएं और अच्छी तरह जान लें कि आपने जो कहा वो सच है, ताकि इस पर गवाही दें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मीयत को नेक पाया तो आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, खुदाया हमारे लिए आसमानी दस्तरखान नाजिल फरमा ताकि हमारे लिए और आने वाली नस्लों के लिए ईद हो जाए और आपकी तरफ से एक निशानी शुमार हो। हमें रोजी अता फरमा, तू सबसे बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दस्तरखान नाजिल करता हूं, लेकिन याद रखो कि उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और जो इनकार करेगा उस पर ऐसा अजाब आएगा जो किसी और पर नहीं हुआ। दस्तरखान नाजिल हुआ, उसमें रोटियां और मछलियां थीं। चूंकि ये बरोज इतवार नाजिल हुआ, इसलिए उन्होंने उस दिन को रोजे ईद करार दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ में भी आया कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद का सबब हो, यानी हमें हमारे विजदान और फितरत की तरफ पलटाए जो तौहीद और ईमान की बुनियाद पर है। रिवायत है कि मुतअद्दिद बार दस्तरखान नाजिल होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी कि ये आसमानी दस्तरखान फुकरा के लिए बिछाएं, ना कि मालदार और उमरा के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसी हुक्म पर अमल किया, लेकिन उस पर मालदार लोग शक व तरदीद में पड़ गए और बाज़ दूसरे लोग भी इस मोजज़े पर शक करने लगे। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनमें से 333 मर्दों को सूर की शक्ल में मस्ख कर दिया, जो उल्टी सीधी हरकतें करते और गंदगी वगैरह खाते थे। उन लोगों के रिश्तेदार गिरिया और जारी करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर आए, लेकिन 3 रोज के अंदर वो सब हलाक हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन के लिए सबसे अहम काम सीरो सियाहत और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। आप अलैहिस्सलाम का एक दोस्त था जिसका कद छोटा था और जो हमेशा आपके साथ रहता था। एक दिन वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा सफर पर रवाना हुआ और चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंचे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यकीन खालिस से बिस्मिल्लाह कहा और पानी पर चलना शुरू कर दिया। ये छोटे कद का शख्स जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पानी पर चलते देख रहा था तो उसने भी बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर कदम रखा, लेकिन जब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो खुद पसंदी में गिरफ्तार हो गया और सोचने लगा, ये ईसा रूहुल्लाह हैं जो पानी पर चल रहे हैं और मैं भी पानी पर दो चल रहा हूं, बस उनका मुझ पर क्या फजीलत है। इसी लम्हे उसके कदम बेकरार हो गए और वो पानी में डूबने लगा। चलाते हुए कहा, ए रूहुल्लाह, मेरा हाथ थामे और मुझे गर्क होने से बचाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बाहर निकाला और फरमाया, ए दोस्त, तुमने खुद पसंदी की वजह से अपने आप को उस मकाम पर समझा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर नहीं किया, इसीलिए तुम पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अब तुम अपने इस कौल से तौबा करो। शख्स ने तौबा की और फिर अल्लाह ने उसे वही मकाम अता फरमाया जो उसके लिए मुकर्रर था। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हव्वारियों के हमरा सैरो सियाहत करते हुए एक गांव पहुंचे तो देखा कि वहां इंसान, परिंदे और चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालूम होता है ये सब अज़ाब-ए इलाही के सबब मौत के घाट उतरे हैं, क्योंकि अगर ये यके बाद दीगरे मरते तो यकीनन एक दूसरे को सुपुर्द खाक करते। हव्वारियों ने अर्ज किया, ए रूह खुदा, अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करें कि उन्हें जिंदा करे ताकि हमें इस अजाब की वजह मालूम हो और हम इस गुनाह से बचें जिसकी वजह से ये लोग इस अजाब का शिकार हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में उनके जिंदा होने की दरखास्त की तो आसमान से आवाज आई कि उन्हें जिंदा कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और लोगों से फरमाया, ए इस गांव के लोगों, उनमें से एक शख्स जिंदा हुआ है। जिंदा शुदा शख्स ने कहा, हां ए कलमा खुदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर अफसोस, तुम्हारी क्या हालत थी कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, 4 चीजों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ, तागूत
यानी गुमराही की परस्तिश, अल्लाह से कम खौफ, दुनिया से दिल की वाबस्तगी, लंबी चौड़ी ख्वाहिशात और दुनिया के खेल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर मां अपने बेटे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया हमारी तरफ रुख करती तो हम खुशहाल होते, और जब पीठ फेर लेती तो हम गिरिया उजारी करते और गमजदा हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे? जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, हम गुनाहगारों की इताअत और पीर भी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे अमाल की अंजामदही कैसे हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी से सोते और सुबह हाविया में पहुंच जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सजीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सजीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पगले हुए पहाड़ हैं जो कयामत तक हमारे ऊपर बढ़ते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम हलाक हुए तो क्या कहा और अल्लाह के फरिश्तों ने क्या कहा? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा कि हमें दुनिया की तरफ भेज दो ताकि नेक आमाल करें और जाहिद व पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हालत पर अफसोस, तुम्हारे अलावा उन हलाक शुदगान में से किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ऐ रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद हैं और वो फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उनके दरमियान रहता था, लेकिन उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया। उस वक्त बाल की मानंद बारीक तार से दोजख की गाटी के किनारे लटका हुआ हूं। मालूम नहीं है कि वहां से दोजख में जाऊंगा या नजात पाऊं। शायद ये अजाब इसलिए हुआ कि मैं उम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क करने में कसूरवार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ अल्लाह के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है, बशर्ते कि ये दुनिया और आखिरत की सलामती के साथ हो। बनी इसराइल के दरमियान एक सा खानदान आबाद था कि जो भी 40 रातें मुसलसल इबादत और राजो न्याज में गुजारता, उसकी दुआ कबूल हो जाती। इसी खानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत और राजो न्याज में गुजारी, लेकिन जब उसने दुआ की तो वो कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। शिकायत की और इल्तमास की